ہمارے سینئر تجزیہ کار اسرار رانا صاحب نے ہمیں آن کال جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اسرار رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا صورتحال یہ ہے، وزیر اعظم کا خطاب بھی آپ نے سنا اور خط کے حوالے سے بات بھی سنی۔ اب یہ خط امریکہ سے نہیں آیا، کسی ملک سے آیا، کیا یہ کہنا جو ہے وہ ٹھیک تھا، ضروری تھا، یا ٹنگ سلپ ہو گئی؟ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، ذرا پہلے اس پہ بات کر لیں، اس کے بعد اپوزیشن کی بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں کل ان صحافیوں میں شامل تھا جنہیں وزیر اعظم نے بلایا تھا اس خط کے حوالے سے، جی، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس ملک کا نام ابھی ڈسکلوز نہ کریں، کوئی سفارتی مجبوریاں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو اپنے خطاب میں ان کے نکل گیا، اسی لیے انہیں روکا جا رہا تھا کہ وہ لائیو خطاب نہ کریں، صحیح، کیونکہ وہ جذبات میں بعض اوقات انسان کو نہیں رہتا۔ لیکن یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں تھا جس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ صحیح، ظاہر ہے ہمیں کسی یوگنڈا نے تو نہیں تھریٹ کرنا تھا، ظاہر ہے ہمارے ملک کے اوپر تسلط جو ہے وہ نمیبیا کا تو نہیں تھا، جس کا تھا وہ تو سب کے سامنے آنا ہی تھا، اور آج میڈیا میں آلموسٹ یہ چھپ ہی چکا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کے جو خطاب کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان نے ایک لکیر کھینچی ہے، اور اس لکیر میں اب یہ طے ہونا ہے کہ کون غیرت کے راستے پہ کھڑا ہے اور کون ضمیر فروشی کے، اور اب یہ طے ہونا ہے کہ کہاں پہ پاکستانی قوم یہ طے کرتی ہے کہ کیا اس نے اگلی زندگی ساری زندگی غلامی میں گزارنی ہے، یا اب آگے والی زندگی جو ہے سر اٹھا کے گزارنی ہے۔ ہم نے تو گزار دی اپنی، میری بات، ہم نے تو گزار دی اپنی زندگی جیسے تیسے کر کے گزار دی۔ امریکہ ہمیں استعمال کرتا رہا، برطانیہ ہمیں استعمال کرتا رہا، یورپ ہمیں استعمال کرتا رہا، اور اس خوف سے ہم ان سے کچھ نہیں بولتے تھے کہ ہمارے بھیک ڈالنا بند کر دیں گے۔ لیکن اب تو یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ بھائی غیرت کے راستے پہ چلنے کی کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ اکیلے عمران خان کو نہیں کرنی چاہیے، قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، قومی سلامتی کے اجلاس کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج قومی اداروں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے وہ یہی آیا کہ جس ملک نے بھی پاکستان کو اس طرح کی دھمکی دی ہے اس کو جواب دیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اب اکیلے عمران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری خودداری کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ادارے آج کھڑے ہیں اور جنہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد مشترکہ اعلامیہ دیا تو یہ طے کر چکی ہے ریاست کہ ہم نے یہ جو ہمارے اوپر یہ طے کیا جاتا ہے نا کہ ہم پہ کون مسلط ہوگا، کیسے ہوگا، اب نہیں ہوگا مزید۔ اپوزیشن نے تو اس کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے، پیپلز پارٹی نے تو جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلانے کی تو جو ہے وہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، یہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایک نیا سٹیپ لے لیا ہے۔ تو اس میں عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہ اس کا کیا میسج جاتا ہے؟ اور اپوزیشن نے تو خیر اپنی بات کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنی بات یہ سمجھانی ہے کہ پاکستان کا یہ امیج کیا گیا ہے کہ اس طرح ایک خط موصول ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے کے، سامراجی قوتوں کے خلاف سٹینڈ لے کے اپنی جان کی قربانی بھی دی، اور افسوس یہ کہ ان کی پارٹی کے اوپر محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ اپنے باپ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس کی بنیادوں میں پاکستان کے بھٹو خاندان کا خون ہے، لیکن انفارچونیٹلی بلاول بھٹو کہیں سے بھی بھٹو کو کے ترجمان نہیں ہے، وہ بلاول زرداری کے بیٹے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا خون نہیں ہے، وہ نواسے ہیں بس۔ تو زرداری، آصف علی زرداری کا کہیں بھٹو کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ ایک جعلی پرچی کہاں سے پیدا ہو گئی جس میں بلاول کو کہہ دیا گیا کہ وہ چیئرمین ہے، یہ وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی کہ پیپلز پارٹی پہ کیسے قبضہ کیا گیا۔ باقی رہی اپوزیشن، تو شہباز شریف کو اللہ نے کہہ چکے کہ عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ
कहना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान 10,000 दफा कह चुके हैं कि इमरान खान को यूरोप को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तो अब ये तय करना कि हम इन गुलामों के पीछे चलेंगे, ये एक ऐसे शख्स के पीछे चलेंगे जो हमें ये कह रहा है कि हमें अपनी गैरत के साथ जिंदा रहना है। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब तो कहते हैं ना कि खत भी जाली है जी, मैंडेट भी जाली है, हर चीज जाली है, झूठ बोल रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा जो है वो ये झूठ उनको लग रहा है और अपोजिशन के पास नंबर ऑफ गेम कंप्लीट है, तो फिर ये आपस में जो है वो इतना फितना फिसाद डालने की तो जरूरत ही नहीं इसरार साहब। ये तो फिर बात जो है वो हल हो जाती है। अगर 172 से ज्यादा जो है वो वोट शामिल है तो तरीके दम-ए-एतमाद लाने तो अपोजिशन के लिए बड़ा आसान काम है। फिर ये सारे चक्रव्यूह चलाने की क्या जरूरत है? देखें, बात ये कि खत जाली है, ये जरदारी साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कह सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जाली बिल बनाने से लेके और बिलावल भुट्टो की जाली पर्ची बनाने तक उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी रह गई इतवार को काउंटिंग होगी, पता चल जाएगा फरोश कहाँ खड़े हुए और वतन परस्त कहाँ खड़े। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, क्योंकि आपने तो जब आपको बुलाया गया तो वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने जो है जो सीधा सीधा पॉइंट जो है वो इस खत के रखे, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि उस खत के अंदर कम से कम 10 से 12 दफा ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो हमारे मुखालिफ हैं और वो रूस क्यों गए। और फिर उसमें ये कहा गया कि जी तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है और अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर हमारे पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हो सकते हैं। और ये खत 7 मार्च को आया, 8 मार्च को अदम-ए-एतमाद पेश हो गई। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये साजिश के ताने बाने कहाँ तक फैले हुए हैं। उन्हें कैसे पता था कि अदम-ए-एतमाद आ रही है और उन्होंने ये कैसे कह दिया कि अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो मामला ठीक हो जाएंगे। और कौन लोग हैं जो उनके कहने के ऊपर अदम-ए-एतमाद लेके आए? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सिंध हाउस के अंदर जो करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं जमीर खरीदने के लिए, वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वो पैसे? सही सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन जवाब देने के लिए तो कोई तैयार नहीं है ना। यहाँ तो जो है वो एक दूसरे पे लान तान जो है वो शुरू है। कोई बात नहीं है, वो जो जवाब देने पे तैयार नहीं है उनसे तारीख जवाब लेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वक्त जवाब लेगा। बिल्कुल सही। जब पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें जवाब। अच्छा, कहते हैं कि वजीर आजम जो है वो खुद ही मुस्ताफे हो जाएं, वो इस्तीफा दे दें। तो वो इस्तीफा क्यों दे दें? जब नंबर ऑफ गेम कंप्लीट है तो भाई तरीके से एतमाद को कामयाब बना लेना। देखें, बात यह है कि उन्हें चाहिए था, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दे दें और फौरी तौर पे आर्मी चीफ जो है ना सदर मुमलिकत मौलाना फजलुर रहमान को बना दें, वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ को बना दें और गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज को बना दें और मरियम की तमाम वो खत्म करके मरियम को पाकिस्तान का ताहयात जो है वो वजीर खारजा टाइप बना दें और नवाज शरीफ को तय कर देंगे ये पाकिस्तान के ताहयात सरपरस्त रहेंगे। ख्वाब देखने और ख्वाहिशें करने में क्या हर्ज है? जरदारी साहब तो जो है वो कॉल भी कर रहे हैं ना उनको कि जी वजीर आजम को बुला भी रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वजीर खारजा भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो बना दिया उन्होंने। तो फिर ये तो सारी चीजें जो है सामने आ रही है। फिर आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी जो है वो इंतखाबात लड़ेंगी जी, ये भी जरदारी साहब की तरफ से जो है वो सामने आ गई बात। इस पे क्या बात करेंगे? इल्जाम है कि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया 3.5 साल जी। कोई से पूछे तुम्हारी तीसरी नस्लें सियासत में आ गई जी, ठीक है, चौथी नस्लें सियासत में आ गई हैं, तो आपने क्या कौम को दिया है? क्या दिया है? बिल्कुल, कोई इस बात का जवाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी 3-3, 4-4 नस्लें इस मुल्क के अंदर राज कर रही हैं, ठीक है, तो आपने इस कौम को क्या दिया? बिल्कुल 35 सालों में ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये आसपा आ जाएंगी, आसपा से आगे उनका कोई बच्चा आ जाएगा और नवाज शरीफ आए, मरियम आ गई, मरियम से जुनेद आ जाएंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसरार साहब, आपके पास तो अंदर की बड़ी खबर होती है, आप माशाल्लाह जो है वो बड़ी रसाई रखते हैं। मुझे जरा एक बात बताइएगा, मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से, कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से, अगर आप जो है वो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। मैं हर एनालिस्ट से ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करती हूँ, वजीर आजम रहेंगे या जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वजीर आजम जाएंगे। ये मेरा मैं बस चीजों को कैलकुलेट करके कह रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि अदम-ए-एतमाद के ऊपर काउंटिंग होगी, मुझे नहीं लगता। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उससे पहले ही कुछ होगा। अच्छा, आपको लगता है कि उससे पहले कोई ऐसी चीज आ जाएगी? असल में ये खौफ है वजीर आजम का कि जिसकी वजह से चारों तरफ से जो है वो इस वक्त आवाजें उठ रही हैं, खत आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक हल्ला मचा हुआ है, खौफ है कोई?
इमरान खान को क्या खौफ होना है? इमरान खान का खौफ है? हाँ, इमरान खान का खौफ है, इमरान फोबिया। मैं तो हैरान थे, मैं समझता था जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी जी, मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो हैरान था कि इमरान फोबिया, ये तो समझ आता है नवाज शरीफ को है, जरदारी को है, मुझे नहीं पता था कि जो बाइडन को भी है। मैं तो हैरान हो गया कि मैं तो कहता था कि नरेंद्र मोदी को फोबिया हो सकता है, जो बाइडन को भी इमरान फोबिया हो गया, यूरोपीय यूनियन को भी इमरान फोबिया हो गया, तो इससे अंदाजा कर लें इमरान खान का कद कितना बड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इस्लामोफोबिया का जो है वो एक दिन मुकर्रर करवा लें, करारदाद पेश करें, ये छोटी बात नहीं है। OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान को मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ, ये छोटी बात नहीं है। ये ही तो आलमी दुनिया में जो है वो एक तहलका मच चुका है इस वक्त के एक लीडर ऐसा मौजूद है जो मुसलमानों के हक के लिए खड़ा हो गया है, और हमेशा से वजीर आज़म कहते हैं कि मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो अगर कोई लीडर ऐसा मौजूद है तो उसको वक्त तो देना चाहिए, और ये तरीके अदम एतमाद जो है वो इसका तो वैसे तो कोई बनता नहीं है। लेकिन चले, अब देखना ये है कि अपोजिशन के पास अगर नंबर ऑफ गेम्स पूरे हैं तो 3 या 4 तारीख को जो है वो ये क्लियर हो जाएगी बात। जी बिल्कुल हो जाएगी। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चीन की शिरकत ने ज्यादा परेशान किया इनको। अगर 1.5 अरब की मुसलमान आबादी और 2 अरब की चीन की आबादी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम दुनिया का 60% चले जाते हैं। तो ये खौफ भी उन लोगों को मौजूद है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान के पास एक अमानत है, और हम वैसे बड़े खाइन लोग हैं अमानत में खयानत करने के, हमने जुल्फिकार अली भुट्टो की हिफाजत नहीं कर सके। सही, तो सही। ये अब वक्त है कौम के लिए कि इमरान की हिफाजत करें। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हवाले से भी जो है वो कह दिया हुआ है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, आगाज तो हो गया, अदालत में है, और मैं ये तवक्को रखता हूँ अपने मौजूद जजेस साहिबान से, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे हमेशा के लिए फ्लोर क्रॉसिंग, जमीर फरोशी का रास्ता बंद हो जाए। बिल्कुल सही। और एक ऐसा फैसला आना चाहिए जिसके बाद ये तय हो जाए कि कोई शख्स पैसों के ऊपर कौमी मैंडेट को नहीं बेचेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असरार राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, और बहैसियत एक सीनियर एनालिस्ट जो है वो आपने असरार राना साहब की बात सुनी। उनका मौक़िफ़